खुद के लिए इतना नहीं होता यार. For you, at after a point, you've enjoyed certain level of things, you're happy. When your partner or your family starts enjoying those luxuries ना, तब मजा आता है. Then it feels कि हाँ, like now these cards or these plastics are actually making themselves worth it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स सही है. आज के मेरे गेस्ट कनव महाजन मेरे ही कॉलेज से हैं, आईआईटी दिल्ली से, और मेरे हॉस्टल के साइड वाले हॉस्टल में रहते थे, पर हमने कॉलेज में ना कभी बात की, ना हम कभी एक दूसरे से मिले. इस पॉडकास्ट की वजह से हमें पहली बार मिलने का मौका मिला. कनव को 10 से ज्यादा साल हो गए हैं क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हुए, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इनके पास कि ये एपिसोड आप लास्ट तक देखना चाहोगे. तो चलिए सुनते हैं कनव से. हाय कनव. Hi Ankush, how are you? आई एम गुड. थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. Pleasure. Excited to hear your stories. So Kanav, I hear you are a big user of credit cards. Is that true? Yep. Okay. So how much do you spend on credit cards? Let's start with that. So the monthly expenses, I guess, would be somewhere on average tending between 60 to 1 lakh, 60,000 to 1 lakh. They range among that depending upon what kind of month is going on. Okay. So if there's too much travel, they tend to peak. If there's not much happening, then they remain in the 50 to 60,000 range. अच्छा, और कहाँ मेजरली खर्चा कहाँ होता है, So- किस टाइप की चीज़ों पे? I guess 3 broad categories. Shopping. I'm not counting travel in that. So shopping may would be your clothes shopping, grocery shopping, etc. Right. Right. Especially with these quick commerce apps, the cards are just saved everywhere. All you have to do is click and payments happen and Right. like go about. Second category is travel. Right. And third category is leisure and entertainment. So movies and accompanying expense. Okay. So these are like the 3 big categories in which I tend to have my credit cards. And I'm sure you try and use benefits of cards on all of these categories, because I can imagine, right? Movies free मिलती हैं, Absolutely, and then brands पे online discounts मिलते हैं, travel पे तो obviously discounts मिलते ही हैं. So look, very simply put, Swiggy, I switch apps depending upon which card discount is coming. Okay. So having had a multiple range of cards, Right. 1 or 2 are the primary cards, and then the others are auxiliary cards जिनका use is just to get discounts here and there. कभी यात्रा पे discount ले लिया, कभी MMT पे discount ले लिया. Right. And tickets का तो as you said, right, I am a Magnus user, and despite all my anguishes with the card, the 1+1 offer is one of my I would want to hear more about that, by the way, but go on. yeah, so that 1+1 offer on movies. Okay. And the fun part is यार घर वालों के साथ जाओ ना, for them it's a big deal, right? तुम multiplex गए, you're like, boss, ticket, I'm footing the ticket, don't worry. Yeah, Humble sometimes brag. you tell parents कि आप चले जाओ, हाँ. and I'll book the ticket यहाँ से, so that they have a 1+1. Right. मतलब it doesn't appear that big to us anymore. For them it's a big deal. Yeah. बेटे ने टिकट करा के दी. Exactly. Plus free है. और वो भी bigger free. thing is Yes, कि एक तो free है कि उसमें. उसका भी खर्चा नहीं हो रहा है. Exactly. That is what excites them the most. Like anything that saves money, right? Middle class parents. I know. Exactly. Yeah. So it's like that यार कि it's a bit of convenience and value maximization के बीच का कहीं game on all cards. Okay. ये क्रेडिट कार्ड से लव अफेयर स्टार्ट कब हुआ? पहली जॉब लगी, राइट, पैसा आया. हाँ. तो हमारे इंजीनियर में कहते नहीं एंट्रोपी बढ़ गई सिस्टम की, राइट, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो खर्चे बढ़ा दिए. तो किसी ने कहा यार अब इतना खर्च ही रहे हो, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट यूजिंग कार्ड्स बिकॉज़ इट्स जस्ट इजी. सब colleague told you? कलीग टोल्ड मी. अच्छा, okay. तो एंड द And कलीग this वाज was back when? 2013. 13, so around 10-11 years. Yes. Okay. तो एंड तब सिटी का एक शॉपिंग कार्ड आता था ब्लू कलर का, आई डोंट इवन रिमेंबर द समझ गया. कैटेगरी. I don't also remember the name. Yeah. तो वो मिला. Okay. फिर सिटी वालों ने खुद ही कहा कि ये क्यों इस पे जो खर्चे कर रहे हो, इससे अच्छा है, टिकट्स बहुत खर्चे होते थे ना, Right, तो दे सेड कि व्हाई डोंट यू स्विच टू प्रीमियर माइल्स, एंड दिस इज 2014. Okay. बट 2014 में प्रीमियर माइल्स आ गया. हाँ. और अच्छी चीज ये हो गई कि दोस्त भी ट्रैवल करते थे, उनके पास कार्ड नहीं था, तो वो कार्ड ले लेते थे और पैसे दे देते थे. तो अच्छा, उनके आपसे points कार्ड भी- लेते थे हाँ, अपनी बुकिंग के लिए. हाँ, हाँ, तो उनके भी पॉइंट्स एक्रू होने लग गए. अब कोई पॉइंट्स तो वापस नहीं मांग सकता ना. Right. किसी एक दो ने लंदन की टिकट बुक कर ली, वो भी कंपनी की टिकट, तो 1.5-2 लाख का फटका था, बट उतने ही पॉइंट मिल जाते थे. Right. तो चांदी हो गई. सो 2015 में when I quit my job and went for my MBA, my initial few tickets were all by those miles. अच्छा. पैसे ही नहीं खर्चने पड़े क्योंकि इतने पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे. तो this was like the start of the love affair. Okay. So you kept Premier Miles for a long time? I still have it. Oh, you still have it? I have not stopped using that. It has been an amazing card for a very long time, to be I honest. mean, it's been the most consistent card, Consistent. right? That's At the the right end of the day,
good, like Magnus के benefits for example थे, right? It easily became the most hyped card I've ever seen in the Exactly, market. yes. But वो जब टूटा ना तो it sort of brought a heartbreak with it, right? yes. प्रीमियर माइल्स ने ऐसा कुछ किया नहीं है, राइट? सो सिटी हैज ऑलवेज स्टेड कंसिस्टेंट, वो कुछ खास चेंज ही नहीं हुआ. तो एटलीस्ट आई नो कि व्हाट हैव आई साइंड अप फॉर, दैट इक्वेशन हैजंट चेंज. सो फॉर मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So that's why I've not quit the card. I still have about some 70,000 odd points staying on the card. तो चल रहा है. Great, awesome, cool. And are you married? Yes. Okay. So wife को सारे cards के बारे में पता है? Wife को ये पता है कि पूछ लेना is better. अच्छा. क्योंकि अब मेरे दोस्त पूछते तो हम also शर्म नहीं करते ना कभी किसी दोस्त को पूछने में. तो the good thing I did with Magnus was I got an add-on card. अच्छा. And my wife and I both have Diners Black. Okay. With us. Okay. So and that's a lifetime free. अब कब तक है वो नहीं पता, but अभी वो free है. अच्छा. तो we anyway have Diners and we have a Magnus one, मतलब add-on साथ में. तो at least that way what we managed to do is keep our spends very much aligned to one card. ठीक है. And कभी से जैसे डाइन आउट पे या इजी डाइनर पे डाइनर्स के बहुत बेनिफिट होते हैं कंपेयर टू अदर कार्ड्स. Right. वहाँ भी स्विच देयर. The only issue with that is कि वो डाइनर्स आधी जगह चलता नहीं है, तो that you need a visa or a mastercard to work with. Okay, so I have heard कि कब से यूज़ करना स्टार्ट किया, कितना टाइम हुआ है, कहाँ कैसे खर्चा करते हो, खर्चा करके जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह कमाते हो उनके साथ क्या करते हो? So मेजरली हमेशा जैसे अभी मैग्नस का जब स्विच था, सारे पॉइंट्स उठाए और विस्तारा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिए. अच्छा. सारे के सारे. Okay. तो दैट वाज गुड अमाउंट की 15-16 फ्लाइट्स निकाल सकता हूँ उनसे. अभी तक 2-3 निकाल ली हैं. Okay. तो अब सिटी का सिंपल है. सिटी का तो है कि आजकल दे आर ट्राइंग टू फिनिश द पॉइंट्स, तो जो भी करो वो आ जाता है, राइट? अच्छा. अब जो भी करो एक मैसेज आ जाता है कि इसको पॉइंट से पे हाँ, एग्जैक्टली, राइट. जैसे कि यू वांट टू यूज पॉइंट्स फॉर दिस, कर लो. बहुत ही कन्वीनियंट है यार. मतलब अच्छा है कि मेरा मंथ के एंड में बिल ही नहीं आता, क्योंकि थोड़े लिमिटेड यूजेज है उस कार्ड का, बट कर लेते हैं उससे ना. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. बाकी कभी कूपन्स खरीद लिए शॉपर स्टॉप के. से फॉर सम एग्जांपल कोई एक दो कार्ड हैं जो बंद करने हैं, अब नहीं चाहिए वो कार्ड, बट दे डोंट हैव इनफ पॉइंट्स कि कुछ बहुत बड़ा हो. ठीक है, वेस्ट साइड का कूपन खरीद लिया, शॉपर स्टॉप का कूपन खरीद लिया. बेनिफिट ये है कि उसके बाद आपको ना कुछ ऐसी होती हैं परचेजेस विच आर अ लिटिल मोर डिस्क्रिशनरी परचेज, राइट? उसमें एट दैट प्लेस यू डू नॉट फील वरीड, क्योंकि तुम्हारे पास कूपन पड़ा है शॉपर स्टॉप का, तो थोड़ी महंगी चीज भी है, खरीद लो, क्योंकि तुम जेब से नहीं दे रहे ना, वो वहां से आ रहा है. तो what those coupons and those points enable is to help you maybe buy things which you otherwise may not buy or drag the decision cycle. So they sort of help reduce your buying decision time. Right. And वो points के अलावा coupons खरीद लिए. Majorly मैंने coupons ही खरीदे हैं. I've honestly not gone anything beyond that. अच्छा. तो जो लोग काफ़ी सारे लोग, मैं भी इनफैक्ट, मैं अपने पॉइंट्स को कन्वर्ट करता हूँ एयरलाइन माइल्स में, होटल पॉइंट्स में, और मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकूँ एक पॉइंट की. करेक्ट. बट जैसे आपने बोला आप वाउचर्स ले लेते हो वगैरह वगैरह, वहाँ वैल्यू कम मिलती है. अग्रीड. एज फार एज आई नो, राइट? सो आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते हो. व्हाई इज दैट? सो यार, मेरा जो सबसे बड़ा माइल्स या पॉइंट्स का यूसेज है वो है एयर टिकट्स बुक करने. ठीक है. बहुत ही सिंपल है. उधर थोड़ा सा ना विजन बहुत क्लियर रखा हुआ है, क्योंकि इतना बैंडविड्थ नहीं है सोचने का. ठीक है. तो मैं कन्वीनियंस वहां ले लेता हूँ. अच्छा. सुबह 6 बजे की रेड आई फ्लाइट लेने से अच्छा है कि दोपहर की एक फ्लाइट ले ली, जिसमें गए शांति से, ना एयरपोर्ट भागने की जल्दी ना कुछ. तो भले ही पॉइंट ज्यादा लगे. एग्जैक्टली. मतलब क्योंकि वो ऐसे लगता है ना कि इट्स सॉर्ट ऑफ स्टिल समवेयर इट फील्स कि इसमें खर्चा नहीं हो रहा, राइट? तो यू एटलीस्ट it's a way of buying yourself that convenience which you otherwise won't buy. Right. For example, जब मेरे को नहीं मिलती points की value वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही value नहीं देखते. Right. But अगर से वो 50-50 या decision point पे आ जाता है, तब I take convenience over value. Got it. But it has to meet certain level of value expectation. अब ऐसा नहीं ना कि 25 पैसे से भी कम वैल्यू मिल रही हो तो ऑब्वियसली नहीं करोगे. अभी विस्तारा कभी कभी आपको 0.7 0.8 दे देता है. Yes, which is good. तो उस टाइम तो इट बिकम्स अ नो ब्रेनर, राइट? बट कभी कभी 0.5 के नीचे जा रहा है, फिर लगता है यार दूसरा ही ले लो ना, मतलब कोई बात नहीं, कैश बुक कर लो, कार्ड से बुक, पॉइंट कभी और यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं. तो मेरा फर्स्ट, like that lazy person in me always wants to maximize convenience over value, but given that the degree of value needs to be met. Yeah, no, this is a very interesting take actually, because and this would be true for a lot of people. मेरे जैसे लोग भी हैं, but मुझे लगता है कि आप जैसे लोग भी बहुत हैं. And that's why I wanted to get this point out too. That's very interesting.
क्या अमेजिंग चीजें की हैं पॉइंट्स के साथ और क्रेडिट कार्ड्स के साथ Let me आपने या फिर अपने परिवार वालों आपके परिवार वालों ने कुछ? हाँ इंटरेस्टिंग सो यार 2000 आई थिंक 2017 हाँ. 2017 में मेरा MBA का ग्रेजुएशन था फ्रांस में अच्छा, एंड आई थिंक आई वाज मोस्टली नॉट गोइंग कि नहीं Okay. जाना है छोड़ो रहने ग्रेजुएशन दे। मतलब वो सेरेमनी जिस पे हाँ आपको तो हाँ, आई हैड अ डबल डिग्री तो अच्छा. इंडियन डिग्री मिल चुकी थी ठीक उसका है. तो हो गया था पहले ही ठीक है. दिस वाज माय फ्रेंच डिग्री उसका ग्रेजुएशन वाज इन पेरिस दिसंबर 2017 ओके, आई एम सिटिंग इन नवंबर मैंने टिकट्स नहीं बुक की हुई Okay. ऑफ कोर्स टिकट्स महंगी पड़ने वाली हैं आई थिंक दे वर कॉस्टिंग अराउंड 53K एट दैट टाइम रिटर्न Okay. व्हिच नाउ फील्स लाइक अ लग्जरी Yeah. राइट तो आई वाज लाइक नहीं जाते छोड़ो जस्ट बिकॉज ऑफ की खर्चा हो खर्चा जाएगा. होगा हाँ, देन रियलाइज की बहुत पॉइंट्स हैं पड़े हुए कार्ड पे तो लाइक यार पैसे आ जाएंगे पॉइंट्स भी आ जाएंगे हाँ. ये बचा के क्या करना है हमने कहीं लेके तो जाने नहीं साथ एंड में। इट्स एन एक्सपीरियंस ना ग्रेजुएशन. हाँ, मतलब वो ग्रेजुएशन एक ही बार होने वाली है Exactly, राइट हाँ. तो खर्च दिए पॉइंट्स अच्छा. बहुत खुश हो गए खर्चे मतलब आई थिंक मैंने शायद ही क्रेडिट कार्ड यूजेज का उतना जॉय कभी लिया और ऐसा नहीं था कि गया तो ग्रेजुएशन अटेंड करके आ गया तो 10 दिन लगा के आया आराम से हाँ. बट फिर आई एंजॉयड दोस 10 days छुट्टी ली दैट वाज माय फर्स्ट हॉलीडे इन माय लाइक द फर्स्ट जॉब आफ्टर MBA ओके, तो आराम से छुट्टी ली एंजॉय किया अनफॉर्चुनेटली रहा मैं फिर भी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में ही Okay. क्योंकि उसमें क्यों मतलब एज अ स्टूडेंट ही जा रहे हो ना Right, 6 right. महीने तो Obviously. तो वहाँ कुछ था नहीं इसको मैक्सिमाइज करने का बट ऐसे टिकट्स में वो वैल्यू जरूर एक्सट्रैक्ट कर ली एंड आई एम ऑलमोस्ट 80% सर्टन मैं नहीं जाता राइट. हैड इट नॉट बीन दोज माइल्स सिटिंग ऑन माई कार्ड So this is a typical example of my miles made me do it. like I don't think मेरी लाइफ में इससे अच्छा है Right. nothing beats this of अच्छा, course there have right. been multiple times कि अगेन ट्रेन लेनी थी यूरोप में फ्लाइट ले ली क्योंकि पॉइंट्स थे Right. ले ली Right. और से होटल यू चूजिंग बिटवीन 2 होटल्स एंड एक पे 15% डिस्काउंट दे रहा है कार्ड हाँ, तो ले लो ना वो यार exactly. Makes sense. might as well go for it Right. and खुद के लिए इतना नहीं होता यार for you at after a point you've enjoyed certain level of things you're happy when your partner or your family starts enjoying those luxuries ना तब मजा आता है then it feels कि हाँ like now these cards or these plastics are actually making themselves worth it And they start loving and respecting you in a different way. नहीं वो मतलब I don't think so उनको तुम में जुगाड़ ज्यादा दिखता है मेरे घर वालों को तो I'm certain No, so I'll tell you, I made my parents fly in business class from India to Europe and return. And I think now they have told me that they're not going to fly economy anymore. And because they also think I'm capable of doing that for Yeah. them. So yeah. Anyway, so any examples of family enjoying your yeah points and benefits? but I'll quote the more recent one so I was in Jammu my wife was in Ahmedabad and she was going for a movie so she just Jen said कि अरे हम इस movie के लिए जा रहे हैं she was just going it's not it is again not about the value of the transaction but the fact कि how convenient it is so I was like book my show खोला check किया कौन सा थिएटर है क्या प्रॉब्लम है रिक्लाइनर सीट्स पे 1+1 मिल रहा था तो व्हाई डू यू वांट टू यूज नॉर्मल सीट्स लो रिक्लाइनर तो मदर इन लॉ एंड वाइफ वेंट एंजॉयड रिक्लाइनर सीट्स तो अब मतलब वो बोलते नहीं है बट विद इन देयर सर्कल यू नो कि दे डू ब्रिंग दिस अप कि यार आज रिक्लाइनर में बैठे हैं पता है 50% ही पे करना पड़ा सो दिस वाज अ वेरी रीसेंट एग्जांपल ऐसे बहुत है मतलब और कुछ अब हाँ थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाला है बट स्टिल वर्थ मेंशनिंग सो वर्ल्ड कप फाइनल था एंड आई वाज इन जम्मू सो आई एम फ्रॉम जम्मू तो माय वाइफ मी एंड माय ब्रदर आर एट होम सेमीफाइनल देख रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सर्टेन है इंडिया जीत रहा है तो माय ब्रदर सेज कि यार फाइनल की टिकट करा लेनी चाहिए थी मजा आता लाइक पता होता इंडिया पहुंचने वाला करा लेते चलो मेरा तो नहीं हो सकता था बिकॉज मी एंड माय वाइफ हैड सम अदर ट्रैवल प्लान्स एंड वी कुड नॉट कैंसिल देम टू अटेंड द मैच तो व्हाट वी डिड आई आस्क्ड अराउंड कि कहीं से टिकट मिलेगी टिकट मिल गई टिकट सस्ते में मिल गई जैसे भी मिल गई अब आई बात की टिकट तो मिल गई ट्रैवल कैसे करें तो आई वाज लाइक कि देख जम्मू से दिल्ली बस दिल्ली से उदयपुर बस उदयपुर से अहमदाबाद बस कर ले हो जाएगा 2.5 दिन लगेंगे बट यूल रीच एंड आई थिंक सेमीफाइनल के बाद 4 ही दिन थे तो 2.5 दिन वुड हैव मेड इट हैपन बट पॉइंट्स थे तो बोला यार कि मतलब अगेन छोटा भाई है मतलब ये अब नहीं यूज करोगे तो कब करोगे तो कोई बात नहीं महंगी टिकट थी क्योंकि जम्मू दिल्ली भी तब on a short notice and a lot of people were doing those routes very frequently शादी सीजन प्लस वर्ल्ड कप का था
तो कोई बात नहीं यार, फ्लाइट कराई, मतलब एटलीस्ट गॉट हिम टिल हाफ द जर्नी फ्रॉम माइल्स। उसके बाद कहा कि भाई अब सॉरी, अब और नहीं हो सकता, अब तू बस ले ले। Okay. तो ठीक है, मतलब आधी 2 घंटे 3 घंटे, मतलब जो समथिंग दैट वुड हैव टेकन 1.5 day took 6 hours max, right? Yes. End to end by flight। उसके बाद 8 घंटे की बस थी। बट हार्ट ब्रेकिंग क्यों था ये? मैच हार गए यार हम। अदरवाइज अगेन फ्लेक्स तो तब होता ना कि देखो माइल्स आए, जीत भी गए। जीत भी गए, हार गए बस। बट अगेन भाई खुश था रिगार्डलेस। तो नाइस। मैं मैग्नस वाली बात पे आना चाहूंगा। मैग्नस से बहुत लोगों को, और मे बी एक्सिस बैंक से भी कुछ शिकायतें हैं, आपकी भी कुछ है? हाँ, मतलब अगेन बहुत ही क्लियर, आई थिंक you were the first person who brought it out कि बॉस ये होने वाला है, Yes. देख लो। That's how I found out कि ये हो रहा है। Right. At that point, I think I was trying to get my wife the Magnus। अच्छा। उसका भी लाइक पॉइंटलेस, Yeah. कोई सेंस ही नहीं बनता, हटाया। फिर अब क्या हुआ, आई थिंक अदर प्लेयर्स हैव फाउंड आउट कि मार्केट में एट दैट annual range there is a space, Right. because there are people who are willing to pay for it। Right. ICICI has just come up with a new offering Good in card, that, yes, right? yes. तो अब प्रॉब्लम ये थी कि इट्स नॉट कि किया उन्होंने, आई थिंक इट्स देयर राइट टू डू इट, Exactly. राइट? यू कांट सेल अ प्रोडक्ट इन लॉस। यस, वो सिर्फ एक्विजिशन स्ट्रेटजी थी उनके लिए। इट वाज जस्ट दे गॉट एवरीबडी इन, दे गॉट इट हाइप्ड एंड देन दे कट इट वेरी फास्ट। यस, Like Infinia and Diners have done this strategy, But but they've done it gradually, organically, yes. बहुत तमीज से। बहुत तमीज से। It feels कि they were still thinking of the customer while doing that। Right. HDFC के लिए। Exactly. For Axis it felt कि कुछ किसी someday someone woke up and saw कि डेटा देखा, PNL देखी कि ये PNL तो बहुत bleed हो रेड रहा है और कर दो। हाँ। अब हल्ला हुआ तो फिर they reactively measure. took some measures, but उसका कोई point नहीं था, तब तक damage had been done। Right. A lot of people who wanted the card did not Didn't take get it। it, yes. मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल इफ माई कोटा ऑफ दिस ईयर स्पेंड हैजंट बीन मेट, मुझे आज या कल में पता चल जाएगा, तो आई एम कैंसलिंग द कार्ड आफ्टर दिस। नहीं चाहिए ना, मतलब खर्चे बाकी कार्ड से निकल रहे हैं, राइट, और नहीं आएंगे उतने बेनिफिट, बट आई स्टिल विल नेवर मेक आउट दैट मच इफ आई हैव दैट प्रेशर कि इतना पूरा करना है। राइट। देन अगेन कार्ड इसलिए नहीं लिया कि एंजाइटी हो जाए परचेज में, Exactly, राइट? makes sense. कार्ड इसलिए लिया कि वो मजा आए खरीदने में। Right. एक्सेस टुक दैट अवे बाय डूइंग इट इन दैट हैफर्डस मैनर ना, वो गलती की उन्होंने। दैट्स वेयर आई फील अगेन इट्स देयर कार्ड, देयर चॉइस, बट दे fair डेफिनेटली point. लॉस्ट मी एज अ कस्टमर आफ्टर दैट। Fair point. A lot of people have lost trust in Axis because of this. What they did with the card, that was their right. They corrected some steps. जैसे उन्होंने पुराने points एक साथ दे दिए, जल्दी दे दिए. That was some things, and I think we had a role to play in that. I agree. Yeah. That was a viral post. Yes. So they did that, which was good. Great. But just to quote, the day your post came out, 3 days back we were at the branch. Because Okay. as I said, my wife travels and she needs a card. Right. So we were there at the branch. The branch tried to force Magnus on us कि एक आप अपने लिए ले लो। अच्छा. I refuse to believe कि 3 days before the actual news broke out, when people basically started getting to know this is happening, the branch wasn't aware. And I'm not talking some small branch. I'm talking about Hiranandani branch, which is like a mega size branch. Right. So they're trying to force the card on you when they internally know that ये devalue whatever they are selling is not going to hold in after a week. होगा. Yeah. That wasn't probably a Not good a very move on their tasteful part. Yeah. experience. Yeah. Understood. So कनव, और क्या benefits use किए हैं क्रेडिट कार्ड्स के? One of the most like मेरा क्रेडिट कार्ड फ्रीक्वेंसी में अगर देखा जाए तो लाउंज एक्सेस इज पॉसिबली वन ऑफ द हाई रैंकर्स। Okay. बहुत सिंपल एग्जांपल यार, घर से सुबह निकल रहे हो, हाँ. मॉम कह रही है या मदर इन लॉ कह रहे हैं कि खाना पैक कर देते हैं, ऐसे कैसे भूखे जाओगे? Right. आई एम लाइक यार नहीं चाहिए। आज ही सुबह इनफैक्ट आई वाज फ्लाइंग आउट फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, तो 5:30 निकलना था। वुड हैव बीन एन इनकन्वीनियंस, बट पेरेंट्स डू इट। पेरेंट्स वुड हैव मेड समथिंग एंड खा के जाओ। लाइक नहीं चाहिए, अपन वहां जाके लाउंज पे पे लेंगे। तो वेंट देयर, हैप्पीली गॉज्ड ऑन फूड, हैप्पी, सो हैप्पी दैट घर आके मेड को भी बोल दिया कि मत आओ, आई हैव डन माय कोटा ऑफ ब्रेकफास्ट। सो ऐसे टाइम पे यू फील गुड कि है ये एक्सेस, राइट? क्योंकि अदरवाइज अगेन 250-300 की बात है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? पॉइंट इज कि यू एंड अप यूजिंग दैट luxury that you've been afforded. And you gave convenience to your relatives. मतलब उनको उठना नहीं पड़ा, खाना नहीं बनाना उनके लिए वो फ्लेक्स है, हाँ. अपने लिए कन्वीनियंस हो, वो दे आर हैप्पी। अपने को बस ये है कि किसी को क्यों प्रॉब्लम देनी जब अपने पास है ये लग्जरी खींचने के लिए। तो दैट्स वन। अदर टाइम बहुत बार ऐसा हो जाता है यार कि कुछ ओकेजन है जिसमें पैसे वापस आ जाएंगे या सब पूलिंग इट टुगेदर, तो यू डोंट माइंड
पुटिंग द कार्ड आगे Right. कि यार ले तू कार्ड ले क्योंकि पता है पैसे तो मिलने वाले हैं Right. स्प्लिट वाइज अब नहीं करते लोग बट यूपीआई जिंदाबाद Right. सब कुछ आ जाता है वापस इंस्टेंटली Right. बट कार्ड अपना खर्च दो ताकि पॉइंट्स के पॉइंट्स हो गए Right. और किसी और को प्रॉब्लम भी नहीं हुई Right. तो विन विन हो गया Right. तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं वेयर यू नो यू पेड फॉर सम क्लब मेंबरशिप ऑफ अ फ्रेंड कोई टोस्ट मास्टर टाइप की मेंबरशिप जो उनके कार्ड से नहीं हो रही थी Right. पे कर दिया Right. कि द फ्रेंड विल पे यू बैक एंड तुम्हें पॉइंट्स भी मिल जाएंगे हाँ, you did him a favor, उसकी नहीं हो रही थी आपने कर दिया और आपको पॉइंट्स मिल गए Exactly. दोनों खुश विन विन Exactly. Great. So, Kanav, we've been doing this with all of our guests. So, let's do it with you too. It's a quick rapid fire. I'll ask you 4-5 questions. Okay. आप one word या one line answer देना और जितना जल्दी हो सके. ओके हैम्पर का है मेरा Hamper, वो घर पे भिजवा देना. ठीक है हाँ, I'll redeem some points and send you a hamper. बढ़िया So, okay, let's start. How many cards do you have? 6 Okay. 7 एक्चुअली स्कापिया भी है 7 Okay. How much do you spend on your cards in a year? गुड क्वेश्चन बॉल पार्क 6 to 10 lakh Okay. The value of return that you get on spending this 6 to 10 lakh. गुड क्वेश्चन कभी नहीं सोचा ही नहीं उस तरह सोचा ही नहीं Okay. What's your favorite card? ऑल टाइम सिटी का प्रीमियर माइल्स जस्ट बिकॉज ऑन द ट्रस्ट फैक्टर Okay. आई अदर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक्सिस के साथ दोस्ती नहीं है आजकल आई स्टिल लव मैग्नस अ लॉट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कार्ड व्हेन इट केम आउट Right. What's your dream card? इन्फिनिया You want to get an Infinia. मिल ही नहीं रहा I'll so it's I'll like, share some tips. it's the apple of cards for me Okay. it has that aspirational value which other cards don't have I'll share some tips on how to get it. okay Okay. Cool. So, Kanav, how do you, so, you know, the market is heating up. right Smaller banks are coming in, correct bringing in new products, Right. competitive products. right 25% YOY से outstanding cards की volume बढ़ रही है इंडिया में, right right? So, how do you as a user see this changing in the next 3 to 5 years? Or to put it slightly differently, आप क्या चाहते हैं हो in the world of credit cards that you would love as a user? Got it. यार तो मैं कंसल्टिंग में था ठीक है. राइट हम हर जगह पर्सनलाइजेशन बेचते थे ठीक है. राइट दे स्टिल डू एवरीवेयर यू गो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस क्यूरेटेड एक्सपीरियंस Right. आई थिंक बैंक्स हैव मिस्ड a chance of you know using the data that they have on making it happen Okay. regardless of what mere Axis has my entire value data right Right. I have been a Citibank user for 10 years, over 10 years now. Right. While they are closing India, they've closed business technically. I still have the account with them, right? When I was not using credit cards as effectively or as much, debit to use kar hi raha tha na. The Yes. banks knew my spending patterns. Right. They still do. यार तो my luxury may have a different definition than your luxury, Exactly, right? yes. मुझे golf आता ही नहीं है खेलना. Right. Golf has no benefit for me. I am fit enough कि मैं एयरपोर्ट पे अपना सामान खुद लेके जा सकता हूँ. I don't need a concierge service. Right. Maybe someday I'm not injured or कुछ हुआ है जिस दिन नहीं चल सक रहा है. It's a separate thing. Right. But I think कि they should have that flexibility. One or two products I'm starting to see in market which are saying they have it. Yes. I think वो जो प्रीमियर स्पेस है ना उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है बिकॉज everyone's definition of luxury at that level changes. Not everybody is a golfer. So True. cards need to understand that and they need to bring that to the foray. What I think issue kya hai market mein, they bring a solution which is luxury, but then they also want it to be one size solution. Right. वो नहीं हो सकता. If you want to target that absolute premier target audience, तो you'll have to give Personalize that. for them. हाँ. And वो फिर ट्रिकल इफेक्ट होगा राइट यू पर्सनलाइज फॉर दैट ग्रुप यू टेक लर्निंग्स तो दी सेकेंड टीयर विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग पर्सनलाइज बेनिफिट्स आई थिंक द क्लियर विनर्स विल emerge those who are able to nail the personalization game better. Okay. Another thing that comes to my mind is that यार मतलब वो जो ना I said I have 6-7 cards right? Right. How do I keep a track of all those cards? Right. I need one place where I can track it. Huh. एंड आई विल बी ऑनेस्ट एक ऐप है वो काले रंग की सी नाम से डजंट वर्क फॉर मी Okay. मतलब आई फाइंड समथिंग फिशी अबाउट इट Okay. तो आई डू बिलीव कि देर इज अ नीड ऑफ अ ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म Right. विच इज नॉट इन द न्यूज फॉर देयर बर्न रेट Right. and which can tell me
कि ये आपके कार्ड्स के स्पेंड्स हैं, ये हैं, विच कैन डू दिस एनालिसिस फॉर मी कि बॉस यू आर यूजिंग दिस कार्ड इनएफिशिएंटली, सुधर जाओ, और यू कैन गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ द कार्ड, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, और which to whom I can tell कि boss मैं इस बैंक का privileged customer हूँ, is there a card out there which this bank can maybe give it for me for free, जिसमें annual expense नहीं है for their premier card, and I can use it. तो I think वो platform का ना play है market में, and we need a player that comes in and fills that gap. Great यार, Kanav, amazing talking to you man, really nice stories and a different perspective in a lot of ways. Thank you so much. I had a lot of fun talking to you. Hamper भिजवा देना यार. बिल्कुल भिजवा देंगे. Don't worry about it. No, it was a pleasure being here on the podcast with you. I think the space has a lot of potential. Yes. And I would love to, again see players like Multiply improve our spend usage, our discipline, and our value extraction from these cards. Definitely. So, looking forward to something great from that end. Sure. Thank you so much यार. तो ये थे कनव महाजन. मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड देख के उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे कनव से बात करके और शूटिंग करके मजा आया. पिछले एक एपिसोड में किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि मुझे अपनी ओपिनियन भी देनी चाहिए अपने गेस्ट के क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, अगर वो कुछ सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा सजेशन है. थैंक यू अभिषेक फॉर दिस. नाउ कमिंग टू कनव्स कार्ड्स, वो 2014 से सिटी का प्रीमियर माइल्स यूज कर रहे हैं, जो तब से लेके अभी तक बहुत ही कंसिस्टेंटली रिवॉर्डिंग कार्ड है. फुल मार्क्स टू हिम फॉर दैट. कनव और उसकी वाइफ दोनों ने डाइनर्स क्लब ब्लैक लाइफ टाइम फ्री लिया हुआ है, जिसपे वो अपने मेजर खर्चे डालते हैं, विच इज ऑल्सो अमेजिंग. एंड कनव हैज बीन ट्राइंग टू अपग्रेड टू इन्फिनिया, HDFC इन्फिनिया, जो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, पर मैंने उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं. पर ICICI बैंक ने एमराल्ड मेटल प्राइवेट नाम से एक इन्फिनिया की टक्कर का कार्ड निकाला है, जो कनव को इनवाइट बेसिस पे मिल रहा है, और मैंने उन्हें रेकमेंड किया कि वो उसे ले लें, क्योंकि उनके यूसेज और लाइफस्टाइल के हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठता है. कनव ने एक्सिस बैंक के कार्ड्स भी यूज किए हैं. जब मैग्नस चल रहा था तब वो मैग्नस यूज कर रहे थे, पर अब वो एक्सिस पे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं और थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, जो मुझे लगता है सही है. तो कनव के लिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने को नहीं है. उन्हें 10-11 साल हो गए हैं और वो बहुत अच्छे से अपने क्रेडिट कार्ड्स यूटिलाइज कर रहे हैं. आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट and he has a great card portfolio. That's it from me guys. मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में. तब तक के लिए धन्यवाद.